Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. Today I am here to talk about the subject that is financial accounting and this is part 3rd. So I am going to start with the journal entry. As you know, the books in which a transaction is recorded for the first time from a source document are called books of original entry, or we can say journalizing. Journal is one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological, or we can say day-to-day order according to the principle of double entry system, right? So as we already discussed that accounting starts with the journal line transaction. Now look at the question. Journalize the following transaction in the books of Harpreet Bros. Number A, rupees 10,000 due from Rohit are now bad debts. Goods worth rupees 20,000 were used by the proprietor. Then charge depreciation at the rate of 10% per annum for 2 months on machine costing rupees 3 lakh. Then provide interest on capital rupees 15 lakh at 6% per annum for 9 months. Rahul, who owed rupees 20,000, become insolvent and a final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate. Then goods costing rupees 80,000 sold to Mohan for rupees 1 lakh. Now journal is the book of original entry in which the transactions are recorded first time and when did it take place, right? So first of all you look at the format. How the format has been shown. First of all, date has been mentioned. Now in this question there is no date mentioned, there is mentioned ABCD, so I put just ABCD there, right? But whenever the transaction has occurred, the date has been shown here, so we put the date here. Then particulars, यहाँ पे particulars आ जाएंगे. The journal entry passed, right? Each transaction affect 2 accounts out of which 1 account is debited and the other account is credited. So the name of the account is to be debited written first and the word debit is also written towards the end of the column, and in the second line the name of the account to be credited is written, right? The credit account starts with the word to a few space away from the margin to make it distinct from the debit account, right? And then put the narration. After each entry a brief explanation of the transaction together with necessary details is given. The explanation is called narration, right? Then move to ledger folio, LF, that is called ledger folio. All entries from the journal are later posted into the ledger accounts. The page number or folio number of the ledger account where the posting has been made from the journal is recorded in the ledger folio column of the journal, right? Then amount debited and amount credited. Amount debited, the amount of the account being debited is written, the amount of the account being credited is written here, right? So start with the question. So first entry is rupees 10,000 due from Rohit are now bad debts. तो यहाँ पर क्या एंट्री पास होगी? बैड डेप्ट टू रोहित, क्योंकि कौन सा अकाउंट यहाँ पर पास हो रहा है? बैड डेप्ट का नॉमिनल अकाउंट हुआ, राइट? नॉमिनल अकाउंट हुआ तो ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, तो यहाँ पर बैड डेप्ट आ जाएगा, ठीक है? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू रोहित. अब रोहित क्या है? आपका डेटर था. यहाँ पर मैं अमेरिकन रूल फॉलो कर सकती हूँ. यहाँ पर जो आपका रोहित था वो बैड डेप्ट निकल गया, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट होगा. आपको बताया था कि अमेरिकन रूल इन अगेंस्ट ऑफ पर्सनल और रियल अकाउंट लग जाता है. तो यहाँ पर मैं ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ जैसे N1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, तो हम पहले वाले को N1 दे देते हैं, दूसरे वाले को N2. तो दिस इज़ द रूल ऑफ N1, राइट? और दिस इज़ द रूल ऑफ एसेट माइनस. तो यहाँ पर डेटर आपका रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? बैड डेप्ट लॉसेज अक्कर हो रहे हैं, राइट? और यहाँ पर मैंने नरेशन लिखी है, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट. कितने रुपीज़ का? 10,000 रुपीज़ का, राइट? देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपको कह रहा है गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर. तो 20,000 गुड्स जो है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए हैं, तो इट मीन्स कि कंपनी के लिए यूज़ नहीं हुए हैं, वो पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने गुड्स को विड्रॉ किया है. तो यहाँ पर जब भी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करेगा या कैश को यूज़ करेगा तो एंट्री पास होगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट. नाउ ड्राइंग्स इज़ द पर्सनल अकाउंट,
राइट। ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट होगा, राइट। एंड परचेजेस कौन सा अकाउंट होता है? परचेजेस योर नॉमिनल अकाउंट, राइट। यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, राइट। अब यहाँ पर ड्राइंग्स आपके विड्रॉ हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था P1 जो होगा रूल, जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड होगा और यहाँ पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिटेड होगा। देन बीइंग गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। Now third entry is charge depreciation at the rate of 10% per annum for 2 months on machine costing ₹3 lakh। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 लाख की जो मशीनरी है उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 2 मंथ्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो मैं एंट्री पास करूँगी, क्या एंट्री पास करूँगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड मशीनरी इज एन एसेट। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो मैं अगर यहाँ पर रूल लगाना चाहूँ तो डेप्रिसिएशन ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि कौन सा रूल लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि N1, राइट। N1 यहाँ पर रूल लग जाएगा और यहाँ पर रूल जो लग जाएगा वो लग जाएगा एसेट माइनस। आप ऐसे शो कर सकते हो एंट्री यहाँ N1 या A माइनस। N1 मीन्स आपका नॉमिनल अकाउंट का फर्स्ट रूल और यहाँ पर एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है। जब भी एसेट क्रेडिट में आएगा आपका एसेट हमेशा रिड्यूस होगा, जब भी डेबिट में आएगा आपका एसेट इंक्रीज होगा। बिग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। अब आपको डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि 3 लाख की मशीनरी है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा ईयरली बेसिस पर। तो यानी मेरे को 30,000 का डेप लगा, ठीक है, 30,000 का मुझे ईयरली डेप लगा, लेकिन मुझे बोला गया है कि 2 मंथ्स के लिए आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं 2 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 5,000, राइट। नेक्स्ट में आपको बोला गया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया जिसकी एंट्री आप पास करते हो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल एंट्री पास करते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाया तो प्रोप्राइटर ने एक तरह से लोन दिया कंपनी को, तो कंपनी को उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज़ द एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सेम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा N1 टू कैपिटल। कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट, राइट। कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट और साथ में क्या हो रहा है आपका, जब भी लाइबिलिटी हमेशा डेबिट में होगी बच्चों, जब भी लाइबिलिटी हमेशा डेबिट में होगी तो रिड्यूस होगी, और जब भी लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट में होगी तो आपकी हमेशा क्या होगी? लाइबिलिटी प्लस होगी। और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट भी होता है, राइट। एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी टू कैपिटल, ठीक है। अब आपको क्या किया गया है कि 9 मंथ्स आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 15 लाख कैपिटल लगा चुका है आपको देना है 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है 9 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे कि 15 लाख इंटू 6 इंटू 100 मल्टीप्लाई विद 9/12, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन करेंगे 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 67,500 बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, राइट। नेक्स्ट आपको बोला गया है राहुल हु ओड ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट and a final dividend of 60 पैसे in a rupee is received from his estate, ठीक है। राहुल जो कि एक डेटर था उसने 20,000 रुपीज़ लिए थे, अब वो इंसॉल्वेंट बन गया है और फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। तो उसके स्टेट को जो भी कंपनी ने सेल आउट किया तो उसको सिर्फ 1 रुपये के बदले 60 पैसा रिसीव हुआ, 60 पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हो गया कंपनी को, तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों? कैश कितना है आपके पास? कैश उसने कहा था 1 रुपये के 60 पैसे, यानी टोटल जो कंपनी ने दिया था, टोटल कंपनी ने कितना दिया था? 20,000 ओ कर रखा था राहुल ने, ठीक है। हमें रिकवर हुआ 60 पैसे के हिसाब से, यानी 60/100। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000, राइट। और बैड डेप्ट 12,000 अगर आपको रिकवर हुआ तो बैड डेप्ट में 8,000 गया टू राहुल, ठीक है। कैश वही आपका एसेट प्लस हो जाएगा, बैड डेप्ट आपका नॉमिनल अकाउंट टू राहुल। राहुल मतलब आपका जो डेटर है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि अब तो वो गया, कैश उससे इतना रिसीव हो गया, बाकी पैसा बैड डेप्ट में चला गया क्योंकि रिसीव ही नहीं हुआ।
ठीक है, बिंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, राइट। नेक्स्ट लास्ट एंट्री आपको लिखी हुई है, गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख, राइट। तो 80,000 के गुड्स थे वो 1 लाख में बेचे गए, तो एंट्री पास हो जाएगी सिंपल, मोहन टू सेल्स, ठीक है। ये आपका मोहन कौन सा अकाउंट होगा, आपने ये पास किया तो आपका डेटर बन गया, ठीक है। मोहन आपका डेटर एसेट प्लस हो गया, A+ रूल लग जाएगा, और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट होगा यहाँ पर, राइट। तो 1 लाख की एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, ऐसे आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।